اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9923 223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100 200 500 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر اس وقت ریاست اتر پردیش کے وارانسی سے آ رہی ہے۔ کافی وائرل ہو رہی ہے یہ ویڈیو کہ گنگا ندی میں ایک کشتی پر افطار پارٹی کرنے والے مشکل میں پھنس گئے۔ 14 لوگوں پر FIR درج ہو گئی، یعنی مقدمہ درج ہو گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے افطار پارٹی کی گنگا ندی میں کشتی پر بریانی کھا کر ہڈیاں ندی میں پھینکنے کا الزام ہے۔ اتر پردیش کے وارانسی میں گزشتہ پیر کو گنگا ندی میں ایک کشتی پر افطار پارٹی کا اہتمام کیا گیا تھا۔ اب اس افطار پارٹی نے ایک نیا تنازع، ایک نیا وواد کھڑا کر دیا ہے۔ افطار پارٹی کی ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ افطار کے دوران مبینہ طور پر چکن بریانی پیش کی گئی۔ الزام ہے کہ کھانے کے بعد بچا ہوا حصہ جس میں ہڈیاں بھی شامل تھی گنگا ندی میں پھینک دیا گیا۔ ویڈیو سامنے آنے کے بعد معاملے نے طول پکڑ لیا ہے۔ کچھ لوگوں نے اسے گنگا کی پاکیزگی کے خلاف قرار دیتے ہوئے ناراضگی ظاہر کی ہے، خاص طور پر اس لیے کہ رمضان کے دوران اس طرح کی سرگرمی کو مذہبی حساسیت سے جوڑ کر دیکھا گیا ہے۔ اور اس معاملے میں 14 لوگوں پر FIR درج کر لی گئی ہے۔ ناظرین، دوسری اور بڑی افسوسناک خبر اتر پردیش کے سنبھل سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، سنبھل کی ایک مسجد میں نمازیوں کی تعداد محدود کرنے کا انتظامیہ نے آدیش دیا۔ اس آدیش کو، انتظامیہ کے اس حکم کو ایک چیلنج کیا گیا اور ایک عرضی الہ آباد ہائی کورٹ میں داخل کی گئی۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے انتظامیہ کے حکم کو رد کرتے ہوئے کہا کہ سبھی کی حفاظت کو یقینی بنائیں، سبھی کی حفاظت کو یقینی بنائیں۔ سنبھل نماز معاملے میں الہ آباد ہائی کورٹ نے انتظامیہ کے حکم کو رد کر دیا۔ عدالت نے ضلع انتظامیہ سنبھل کے اس حکم کو بھی منسوخ کر دیا جس میں نمازیوں کی تعداد محدود کی گئی تھی۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے انتظامیہ کو آدیش دیا۔ ہائی کورٹ نے ریاستی حکومت کو نماز کے دوران سیکیورٹی یقینی بنانے کا حکم دیا اور کہا ہائی کورٹ نے کہ اگر کوئی نماز میں خلل ڈالے تو اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ اور عدالت نے سختی کے ساتھ یہ کہا کہ لا اینڈ آرڈر برقرار رکھنا، امن و امان کی صورتحال بنائے رکھنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، اور اگر SP کلیکٹر یہ سمجھتے ہیں کہ نمازیوں کی تعداد بڑھنے سے امن و امان کی صورتحال خراب ہو جائے گی اور وہ تعداد محدود کرنا چاہتے ہیں نمازیوں کی کم سے کم، تو پھر انہیں یا تو اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دینا چاہیے یا سنبھل سے کہیں اور تبادلہ کرا لینا چاہیے۔ عدالت نے کہا تھا کہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ہر برادری کو مقررہ مقام پر پرامن طریقے سے عبادت کرنے کی سہولت ملے۔
नाज़रीन, रियासत बंगाल से बड़ी खबर आ रही कि बंगाल में 294 सीटों में से 291 पर कामयाबी हासिल करेगी ममता दीदी। ममता बनर्जी ने, ममता दीदी ने खुलकर ये ऐलान किया है कि 294 में से 291 सीटों पर हम कामयाबी हासिल करेंगे, क्योंकि हमारे साथ अवाम हैं और अवाम, बंगाल की अवाम नफरत की सियासत को पसंद नहीं करती। बंगाल की अवाम नफरत की सियासत को ठुकराएंगी, यानी भारतीय जनता पार्टी को किसी भी तरीके से बंगाल एक्सेप्ट नहीं करेगा। बंगाल की जनता नफरत करने वालों पर थूकती है। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हां, बताया जा रहा है कि ईरान अमेरिका जंग के बाइस मुश्किल में भारत पड़ गया है, यानी भारत को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है ईरान अमेरिका जंग की वजह से। बताया जा रहा है कि भारत में 800 कंपनियां अरबों डॉलर की सरमायाकारी किए हुए हैं। अब उन कंपनियों पर बड़ा खतरा लाहिक हो गया है। वो कंपनियां सरकार खतरे में, जिसकी वजह से हजारों करोड़ रुपए की सरमायाकारी खत्म हो सकती है। यह खतरा ईरान, इजराइल, अमेरिका के दरमियान जारी जंग की वजह से पैदा हुआ है। इस जंग के बाइस सफर से लेकर बरामदात के शोबे तक तमाम के तमाम शोबे मुतासिर हुए हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हां, पाकिस्तान ने जिस तरीके से अफगानिस्तान के काबुल में एक हॉस्पिटल पर हमला किया है पाकिस्तान ने, तो पाकिस्तान के इस मुबैना फजाई हमले पर भारत ने शदीद मजम्मत की है। वजारत खारिजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि भारत 16 मार्च की रात काबुल के उम्मीद एडिक्शन ट्रीटमेंट अस्पताल पर पाकिस्तान के वहशियाना बमबारी फजाई हमले की दो टोक अल्फाज में मजम्मत करता है। इनके मुताबिक हमला तकरीबन रात 9 बजे 2000 बिस्तरों पर मुश्तमिल बहाली मरकज को निशाना बनाकर किया गया। वजारत खारिजा के बयान में कहा गया कि इस्लामाबाद अब इस कत्ले आम को फौजी कार्रवाई का रंग देने की कोशिश कर रहा है। यह बुज़दिलाना और इंसानियत से आरी तशद्दुद का अमल है, जिसमें बड़ी तादाद में शहरी एक ऐसी जगह मारे गए जिसे किसी भी सूरत फौजी हदफ करार नहीं दिया जा सकता। आइए, बड़ी खबर आ रही है। जी हां, एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत ने मुंबई में नाश्ते के दाम बढ़ा दिए हैं। एक्चुअल में एलपीजी गैस सिलेंडर यूं समझिए कि होटल्स वालों तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, क्योंकि उधर से ईरान से गैस आ ही नहीं रहा है। अब जनाब, एक तरफ हुकूमत जो कह रही है कि 2 बड़े बड़े जहाज और कंटेनर्स जो है गैस के साथ में ईरान ने रवाना कर दिया है और हिंदुस्तान को बड़ी कामयाबी मिली है, इसको लेकर बाकायदा आम आदमी पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट संजय सिंह ने भी आवाज उठाया है और उन्होंने कहा है कि ये सब झूठ बात है। अगर ईरान ने गैस सिलेंडर के जितने ट्रक थे गैस के एलपीजी के अगर वो छोड़ दिया है, तो फिर लोगों को मिल क्यों नहीं रहा है? लोगों को सिर्फ शांत और खामोश बिठाने के लिए ऐसी खबरें लाई जा रही है। खैर, एलपीजी की किल्लत ने मुंबई में तो नाश्ते का दाम बढ़ा दिया है, डोसा और वड़ा महंगे हो गए और दुकानदार बेचारे केरोसिन का इस्तेमाल शुरू कर चुके हैं। नाज़रीन, इस वक्त उत्तर प्रदेश से फिर बड़ी खबर आ रही है। जी हां, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी हुकूमत यानी बीजेपी हुकूमत, योगी हुकूमत से बड़ा सवाल किया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी हुकूमत से सवाल किया कि क्या हिंदुओं को उनके घर पर अगर वो इबादत कर रहे हैं, इज्तिमाई इबादत, तो क्या हिंदुओं को उनके घर पर इबादत करने से रोका जा सकता है? जाहिर बात है कि नहीं रोका जा सकता। तो फिर मुसलमानों को क्यों? क्योंकि मुसलमानों को उत्तर प्रदेश में लगातार टारगेट किया जा रहा है, सताया जा रहा है। यानी अगर कोई अपने घर में भी नमाज पढ़ रहा है तो उसको तकलीफ दी जा रही है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट तक ये मामला पहुंचा और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ यूपी सरकार से सवाल किया कि क्या तुम हिंदुओं को, अगर हिंदू उनके घर में इज्तिमाई इबादत करे तो क्या तुम उनको रोकोगे? जाहिर बात है नहीं रोक सकते। तो जब उनको नहीं रोक सकते तो मुसलमानों को अपने घर में इज्तिमाई इबादत से कैसे रोका जा सकता है?
अजरादिन महाराष्ट्र के नायब वजीर आला उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र एकनाथ शिंदे फिर अचानक दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली पहुंचने का मतलब आपको मालूम है, आका के दरबार में हाजिरी देना होती है। जी हाँ, यानी अमित शाह के दरबार में हाजिरी देना होती है। अब बताया जा रहा है कि नायब वजीर आला एकनाथ शिंदे अचानक फिर दिल्ली पहुंच गए। तो बताया जा रहा है कि वजीर आला देवेंद्र फडणवीस यानी मुख्यमंत्री फडणवीस के साथ कशीदगी की इत्तलात है, यानी दोनों की आपस में बन नहीं रही है और बार बार कुछ ना कुछ होता रहता है और एकनाथ शिंदे सीधा दिल्ली पहुंच जाते हैं। फिर दिल्ली से थोड़ी सी तसल्ली दी जाती है, फिर वापस आ जाते हैं। लेकिन अभी फिर अचानक दिल्ली पहुंचे हैं तो खबरें आ रही है कि मुख्यमंत्री फडणवीस के साथ उनके मामलात नहीं जम पा रहे हैं, जिसकी वजह से फिर वो अचानक दिल्ली पहुंच गए हैं। और एकनाथ शिंदे के दिल्ली पहुंचने से सियासी हलकों में बहस शुरू हो गई है कि महायुति के अंदर, हुक्मरां पार्टी के अंदर इख्तिलाफात पैदा हो गए और कशीदगी बढ़ गई है। नाज़रीन, मुंबई के मुलुंड स्टेशन से बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है कि मुंबई के मुलुंड स्टेशन पर शौहर ने बीवी को ट्रेन के सामने धकेल दिया। यह वारदात सीसीटीवी पर रिकॉर्ड हो गई। पुलिस ने मुलजिम को सूरत से गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि मुलुंड रेलवे स्टेशन पर यह वाकया पेश आया, जहां एक शौहर ने खानदानी झगड़े और तलाक की जिद के बाइस अपनी बीवी को चलती हुई लोकल ट्रेन के सामने धक्का देकर मौत के घाट उतार दिया। इस शौहर की, इस मुलजिम की शनाख्त राजू गुप्ता 42 साल के नाम से हुई है, जो पेशे के एतबार से इलेक्ट्रीशियन हैं। वो अपनी बीवी पुष्पा के साथ तवील अरसे से घरेलू तनाज़ात का शिकार था। बताया जा रहा है कि बीवी को ढकेलने के फौरन बाद राजू गुप्ता अपने छोटे बेटे के साथ फरार हो गया और वहां से वो गुजरात के शहर सूरत पहुंच गया। हुकूमत, रेलवे पुलिस, जीआरपी ने तकनीकी तहकीकात, सीसीटीवी फुटेज के जरिए से बाकायदा मुलजिम का सुराग लगाया और उसे सूरत से गिरफ्तार कर लिया। आखिरी बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, खबर है कि 10वीं और 12वीं इम्तिहानात में नकल के खिलाफ यानी चीटिंग करते हुए जो पकड़े जाए 10th और 12th के एग्जाम्स में, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि 103 असातिज़ा यानी टीचर्स और इम्तिहानी अमले को के अराकीन को सस्पेंड कर दिया गया, मुअत्तल कर दिया गया, क्योंकि जो नकल होती है ना अंदर एग्जाम हॉल में, वो टीचर्स और वहां के यूं समझे कि स्टाफ की मदद के बगैर नकल नहीं हो सकती। तो 103 टीचर्स को और इम्तिहानी अमले के अराकीन को मुअत्तल किया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई जो हुई है, ये कार्रवाई अब तक बोर्ड की तारीख में नकल के खिलाफ, चीटिंग के खिलाफ सबसे बड़ी और सख्त कदम करार दी जा रही है। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, लीकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट